कॉमर्स के क्षेत्र में अग्रणी संस्था डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट द्वारा 28 तारीख को महात्मा गांधी कला मंदिर सिविक सेंटर में पुरस्कार वितरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल, समाज सेवी विजय अग्रवाल, बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर, सुप्रसिद्ध डांसर तरुण नामदेव व संस्था के सीनियर छात्रों ने अपनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में सीनियर जूनियर के साथ विभिन्न लोगों ने अपनी प्रस्तुति दी व संस्था के टीचर्स भी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर संतोष राय, डॉक्टर मिट्टू, सीए प्रवीण बाफना, सीए केतन ठक्कर, डॉक्टर पीयूष जोशी, सीएमए अदिति गंगवानी, मिस अविनाश कौर, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, इंजीनियर अमित बोफना, सीए विक्रांत रघुवंशी उपस्थित थे। संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर संतोष राय ने सभी का अभिवादन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया व आए हुए सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत किया। सभी ने डॉक्टर संतोष राय की जमकर तारीफ की। प्रोग्राम में भिलाई के 3 IITian ने बेंगलोर में एरोलीप कंपनी का प्रारंभ कर न केवल युवा वर्ग के लिए मिसाल कायम की वरन शार्क टैंक जैसे कार्यक्रम में आकर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत नया स्टार्टअप प्रारंभ किया। एरोलीप जिम की मशीन है जो अत्याधुनिक है। फाउंडर सदस्य रोहित पटेल, अनुराग दानी एवं अमन राय कॉमर्स टैलेंट सांस्कृतिक एवं पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए और युवाओं को नया स्टार्टअप के संबंध में जानकारी दी। सभी ने टीम की खूब सराहना की। लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज चैनल से। दुर्ग से असल बात न्यूज के लिए अनु साहू की रिपोर्ट। Student family for giving us an opportunity to talk about what we have been up to, both personally as well as at Aerolink. I think I'll take just 2 minutes of my time before I hand it over to Rohit and listen to what he has to say. But usually on such occasions, I go on and on about why we should, do strength training in our life and how it can benefit all of us. But today I'll leave all of that. Because it tends to be a monologue. I'm very passionate about the space and I end up just going on and on. Today I will take a step back, zoom out and share a little bit about my personal journey. How did I go from being a passionate engineer who wanted to go to IIT right from the childhood to pivoting into something that was a completely uncharted territory for me, which is fitness, space of fitness and technology. So I think growing up, I always grew up as a kid with asthma. I had allergy-induced asthma while I was growing up. I remember the memories of those Diwali nights where my friends and family would burst crackers and I was hooked onto a nebulizer sitting in my room. And I always used to think that is this how my life is always going to be. I was not ready to accept it, but at the same time I did not do anything better than to listen to doctor's advice, which was always to, just ensure that I don't exert myself because then I would contract allergies. When the seasons would change, I would often be very cautious about my health and ensure that I don't go out as much. I don't remember even a single year which I spent without an asthma attack. When I was 20 years old, I was working in this company called GlaxoSmithKline. I was doing an internship in 2017, the summer of 2017. And during that summer internship, there was an occupational health checkup. And the health checkup revealed something that was even more traumatic. I got shocked when I saw that there were early signs of hypertension. I repeated the checkup, the result was the same. And at that moment, I decided that I want to take charge of my health. I don't care about what other people say, I just want to ensure that I'm able to fix my health, I'm able to play sports, and so on and so forth. That summer, I decided that I want to run a 5-kilometer run without stopping. So in the factory premises, I started running. My first run was a measly 250 meters, and it kept me extremely nauseous, panting. And that day in the shower, I decided that hey, I want to run a 10 kilometers, 5 kilometers is not good enough. I prepared hard.
And one thing led to another, it had a snowball effect. And in the last 7 years, I have graduated from doing a 5-10 kilometer to now doing ultra marathons, which are upwards of 100 kilometers usually. Thank you. So in that journey, I realized that there is so much more to health than just running. I got interested about the space. I started reading more and more about it. I discovered strength training and how it could improve my running performance. Slowly, I started seeing that everybody around me could benefit so much from strength training. I got really passionate about health. And when I took a plunge into starting AeroLeap with 3 of my friends, this was my inspiration. That I wanted I wanted other people to discover the benefits of fixing their own health, what it could do to their mental health, to their relationships. I just wanted more and more people to discover that, and I just wanted a medium to express that. मैं हमेशा जाता हूँ, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, अपील है, आग्रह है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बाहर आ रहा था तो 2 बच्चियां आई, दोनों हेलमेट पहनी हुई थी। मैं संतोष राय जी के इंस्टीट्यूट में जाता हूँ और बच्चों को हमेशा मोटिवेट करता हूँ कि जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे 100% लोग के मोबाइल की सुरक्षा के लिए आपने कवर लगाया है कि गिरे तो टूटे ना। तो सर की सुरक्षा के लिए आज से ये प्रण करके जाए कि मैं घर से निकलूंगा तो 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनूंगा। और मेरे आने से, मेरे बताने से मैं एक व्यक्ति की भी जान बचा पाता हूं, एक बच्चे को भी जागरूक कर पाता हूं, तो वो आज मेरे लिए पुण्य का काम होता है। इसके लिए हम लोग काम करते हैं, क्योंकि सभी युवा हैं, बच्चे हैं, एक लक्ष्य जरूर बनाए। डॉक्टर, इंजीनियर बनना, सीए बनना एक लक्ष्य नहीं होता, एक अच्छा इंसान बने। क्योंकि जीवन का महत्व ये नहीं है कि मैं कितने साल जिया, 70 साल जिया, 80 साल जिया। जीवन का महत्व ये है मैं किस रूप में जिया, कितने लोग की मदद किया, कितने लोग की रक्षा किया, कितने लोग की सुरक्षा किया, कितने लोग के काम आया, कितने पड़ोसियों के काम आया। और इतने महान लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग की मदद कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पात्र हैं। संतोष जी, राय जी बधाई के पात्र हैं। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों में 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है। चढ़ के गिरना, गिर के उतरना ना करता है, किंतु उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं। धन्यवाद है, हम आपका आशीर्वाद चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि सीए चैप्टर भिलाई का चेयरमैन मेरा स्टूडेंट है राहुल बत्रा, और ये तीसरा चेयरमैन है जो मेरा स्टूडेंट है। वो अलग बात है कि उम्र में थोड़ा मेरे से बड़ा दिखता है। राहुल जी उधारी रहा। अभी जानी मानी शख्सियत रायपुर के अंदर, और सीए होते हुए एक राजनीतिक पकड़ जो इनकी है वो भी बहुत ही शानदार। अभी ये स्टेट मीडिया हेड है बीजेपी छत्तीसगढ़ के। क्या बात। साथ ही रायपुर ब्रांच आईसीआई के पास चेयरमैन रह चुके हैं, पास्ट एडवाइजर रहे हैं कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के, और सिकासा के भी पास्ट चेयरमैन रह चुके हैं। ऐसे अमित भैया का हम वेलकम एक बार फिर से करना चाहते हैं, और आप अमित सर से सुनना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं अमित भैया। थैंक यू आदरणीय संतोष जी, मेरे प्रिय साथी प्रवीण जी, मेरे साथ रायपुर से यहाँ पर आए हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहन होतवानी जी, और सभी यहाँ पर जितने भी विद्वान गण हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हम लोग हरिद्वार जाते हैं, कभी वहाँ पर संतों का मेला लगता है। आज कॉमर्स के छात्रों का आपने यहाँ मेला लगा दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूं। और ये पहली बार मेरा आगमन आपके इंस्टीट्यूट में हुआ है। ऐसे बहुत सारा काम करने का अवसर मिला कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। 2015 में जब सिकासा के चेयरमैन थे तो स्टूडेंट्स विंग के ही थे,
और एक सौभाग्य था कि तब छत्तीसगढ़ की रायपुर ब्रांच को पहली बार पूरे भारत में बेस्ट ब्रांच का अवार्ड भी मिला। तो कॉमर्स के स्टूडेंट के बीच काम करना हमारा सौभाग्य भी रहा है, हमारा इंटरेस्ट भी रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं ये इंस्टीट्यूट जिसमें प्रवीण जी हैं, संतोष जी हैं, यहाँ पर आकर कई लोग प्रेरणा लेकर अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ आप अवसर दे रहे हैं लोगों को निखारने का। राहुल मेरा छोटा भाई है, उसकी बातें भी मैं सुन रहा था। तो ऐसे बहुत से राहुल आपने जनरेट किए हैं, डेवलप किए हैं, और छत्तीसगढ़ को भी ऐसे इनोवेटिव लोगों की जरूरत है जो छत्तीसगढ़ में युवाओं को अवसर दें। अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बना, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लेना हमको तब टफ लगता था, सबको लगता है, और बनने के बाद भी कई बार सपना आता है कि एक सब्जेक्ट से रह गए। ऐसा होता है, थोड़ा सा टफ तो लगता ही था। लेकिन मैं कहना चाहूंगा यहाँ बैठे हुए सभी साथियों को कि सीए बनना जो टफ लगता है, यहाँ आके रुकना नहीं है, क्योंकि उसके बाद और आपके लिए एक्सपोजर खुलता जाएगा। मैं जब सीए बना उसके बाद फिर इंटरेस्ट आया ब्रांच के लिए कुछ करें, तो चेयरमैन बन गया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के एडवाइजर के रूप में काम करने का मौका मिला, तब भी मजा नहीं आया तो राजनीति में आ गए। और राजनीति में आने के बाद मैंने इकोनॉमिक सेल को देखा अपनी पार्टी के, उसके बाद मैं स्पोक पर्सन हुआ, आज मीडिया हेड के रूप में पार्टी को सर्व कर रहा हूं। तो आप लोग भी जब काम करेंगे, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपने आप को साबित कर चुका होता है, उसके लिए ये दुनिया भी बहुत इज्जत से और योग्यता की नजर से आपको देखने लगती है। आपको अवसर देने का उनका मन होता है। ये आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं। कोई सोचेगा मुझे सीए बन के जॉब करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो वही होगा। अगर उससे आगे सोचेंगे तो 100% बोल के जा रहा हूं वो होगा। बात सिर्फ सोचने की है। तो आप लोग बहुत अच्छा सोचें, बहुत अच्छा करें। और चूंकि अभी हम लोग रूलिंग पार्टी में हैं, सौभाग्य से आप सभी के आशीर्वाद से, तो हमारे लिए अगर कोई काम हो तो आप लोग बता सकते हैं, 100% हम आपकी मदद करेंगे। और यहाँ पर चूंकि थोड़ा सा गाने बजाने का माहौल है, तो प्रवीण ने एक चीज नहीं बताई, वो गाने का बड़ा शौक हुआ करता था और आज भी वो कायम है। तो मैं 2 लाइनें जरूर ये कहूंगा जो मुझे इंस्पायर करती हैं, और कोशिश करते हैं हम सब लोग उस गीत में सहभागी बन जाएंगे। हाँ, कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, कांटों पे अभी जा रहा हूं ना, और आई करना तो आपको यहां आना चाहिए। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर, खान साहब। और आही 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 और आही। जो लोग सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला रख ए मुसाफिर, तो फिर रास्ते भी इंतजार करते हैं। आप लोग चलेंगे और जीतेंगे, अपनी मंजिल को पाएंगे, इस इंस्टीट्यूट का, इस प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। ऐसी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपके मंच का आभार करता हूं। आपने बुलाया, इतना सम्मान दिया। प्रोग्राम हो रहे हैं उसके लिए मैं संतोष राय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी डायस पे जो अतिथि आए थे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, और एक लड़का आया जिसने जितेंद्र की याद दिला दी। हमारे जमाने में जितेंद्र हुआ करता था, 71 में 71 का हूँ। उस जमाने में हेल्थ पे जो है जितेंद्र इस तरह के डांस किया करता था जो आज के बच्चे कर रहे हैं। तो मैं खाली यही कहना चाहूंगा कि भिलाई जो शहर है इसको किसी जमाने में और आज भी एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो नाम संतोष राय ने अपना किया है और जो लोगों की पहचान बनाई और जो बच्चों का भविष्य बनाया है, मैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ। जीवन में उसी तरह आगे बढ़ते रहें और जिन बच्चों की जरूरत है उनकी सेवा करते रहें। पूरा भिलाई आपके साथ है इस तरह के काम के लिए, आप इसमें आगे बढ़ते रहें। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं आई एम नाउ 71, 71 साल की उम्र में मैंने बहुत जिंदगी देखी है। मैं भी बहुत जमीन से बहुत ऊपर आया। मेरा अपना ये मानना है कि 65 के बाद में
आदमी की जिंदगी में सिर्फ उसकी बीवी रह जाती है, बाकी सब चले जाते हैं। चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, पहले एक बच्चा होता है, 2 बच्चे होते थे, सब अलग हो जाते हैं और सिर्फ एक बुढ़ापे में आपकी बीवी रहती जिसकी आप 65 साल कभी कदर नहीं करते और वही आपका ख्याल करती, जहां तक मेरा अपना ख्याल है। और मैं ये मानता हूं कि कर्म और भाग्य, मेरी अपनी सोच है, कर्म और भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग इसको माने या नहीं माने मुझे नहीं पता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। मेरे मामा जी आज से 40-50 साल पहले अलीगढ़ डिग्री कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उन्होंने ट्यूशन की, पिलानी से पढ़ के आए, बहुत गरीबी में रहे और उस मामा जी ने अब्दुल कलाम को 3 बार अवार्ड दिया, उन्हीं मामा जी ने। और उनकी किस्मत देखिए कि उनको एक लड़के के चक्कर में 4 लड़कियां हुई। हमारे अग्रवाल समाज में आज से 40 साल पहले लड़कियों का होना कोई अच्छा नहीं माना जाता था और एक लड़के के चक्कर में 4 लड़कियां हो गई। 4 लड़कियों के बाद जब लड़का हुआ, उन्होंने पूरी दुनिया को पढ़ाया, अब्दुल कलाम को अवार्ड दिया और तकदीर देखिए कि उनका बच्चा नहीं पढ़ पाया। तो ये भाग्य होता है, आपके बहुत भाग्य हैं कि आपको संतोष राय जैसे लोग मिले हुए हैं। कहते हैं कि तकदीर आगे और परछाई पीछे चलती है, तो आदमी को ये मानना चाहिए कि हम अच्छे काम करें तो संतोष राय जैसे लोगों के साथ में रहें। थैंक यू वेरी मच। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. रमजान जी ऐसा बहुत सारा करके फिर काट देते फोटो। जय नारायण भाटी जी हैं, मैं चाहूंगा कि जय नारायण भाटी जी को
करेंगे और स्वागत करेंगे। मैं अमित श्रीवास्तव इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और डॉक्टर संतोष राय का छोटा भाई हूँ। अच्छा, जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्रोग्राम में। और सर बताएंगे डॉक्टर संतोष राय के व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताएं। आप उनके छोटे भाई भी हैं, तो आपसे अच्छा उनका परिचय और कोई नहीं दे सकता मेरे हिसाब से, आप बताएं सर। डॉक्टर संतोष राय एक डिफरेंट पर्सनालिटी है और जो वो समाज के लिए सोचते हैं अपार्ट फ्रॉम हिज प्रोफेशन, कि कॉमर्स में तो उनका कोई जवाब नहीं है और वो अपने प्रोफेशन के अलावा अच्छे स्टूडेंट और बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग बनाते हैं अपने स्टूडेंट को, ये एक बहुत अच्छी खासियत है। दूसरा, उन्होंने जो माँ शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है उसमें उनकी सोच हमेशा जो नीचे तबके के लोग हैं, जो नीडी हैं, उनको ऊपर कैसे उठाया जाए, उनके लिए कैसे किया जाए, और जो सबसे बड़ा दान है इस दुनिया में वो होता है विद्यादान। और डॉक्टर संतोष राय गरीब बच्चों को विद्यादान करते हैं, उनसे कोई पैसे नहीं लेते और हमारे ट्रस्ट के माध्यम से उनको बाकी भी उनके परिवार वालों को और बाकी लोग को भी जो सहयोग चाहिए रहता है, आर्थिक और किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग, तो वो करते हैं। तो डॉक्टर संतोष राय बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, एक डिफरेंट सोच के व्यक्ति हैं। हम भगवान से हमेशा मनाते हैं कि हमारे समाज को डॉक्टर संतोष राय जैसे लोगों की ज़रूरत है और भगवान उनको हमेशा स्वस्थ रखे और उनकी सोच को और आगे बढ़ाते जाए। सीटीएस प्रोग्राम कई वर्षों से आयोजित हो रहे हैं, प्रोग्राम के बारे में बताएं ब्रीफ में। सीटीएस एक बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम रहता है जिसमें पुराने स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स सब इकट्ठे होते हैं और जो पढ़ाई के अलावा जो कला है हमारे सीटीएस कॉमर्स इंस्टीट्यूट के बच्चों में, उनको दिखाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उनको परफॉर्म करने का। तो डिफरेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है इस प्रोग्राम के हिसाब से और एक गेट टुगेदर और बहुत ही टॉप क्लास प्रोग्राम रहता है। तो सीटीएस को हम सब इंजॉय करते हैं और हमारे शहर और हमारे देश के लिए एक गौरव का विषय है सीटीएस प्रोग्राम। सर लास्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर संतोष राय सर को आप एज अ टीचर, एज अ मोटिवेटर कैसा देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? एज ए टीचर, एज ए मोटिवेटर, जैसे मैंने आपको बताया कि वो केवल एजुकेशन या एकेडमिक्स में नहीं बल्कि अपने स्टूडेंट को वो सारी प्रतिभाओं में निखारने की कोशिश करते हैं और ये उनकी खासियत है। तो डॉक्टर संतोष राय अपने इंस्टीट्यूट से ना केवल बहुत अच्छे स्टूडेंट निकालते हैं बल्कि बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश करते हैं जो हर इंस्टीट्यूट में नहीं होता है। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। मुख्य रूप से सांसद विजय बघेल जी रहे, जय नारायण भाटी जी जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं मुंबई से, वो आए हुए थे। मुंबई से तरुण नामदेव जो बहुत अच्छे डांसर हैं और इन्फ्लुएंसर हैं, वो आए हुए थे। इसके अलावा दिल्ली से और एकल के वाइस प्रेसिडेंट कन्वर सिंह भाटिया थे और शहर के पूरे गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित थे, चाहे विजय अग्रवाल जी हों, अरविंद जैन जी हों, तो काफ़ी लोग यहाँ काफ़ी संख्या में उपस्थित थे। सीटीएस का आयोजन कई वर्षों से आप करा रहे हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है सर? सीटीएस का मुख्य उद्देश्य है कॉमर्स को तृतीय श्रेणी का ना समझा जाए। कॉमर्स आज की जरूरत है, कॉमर्स आज की पहचान है और कॉमर्स को कभी भी मैथ्स और बायो से नीचे न समझा जाए, ये उनके बराबर नहीं तो उनसे कम भी नहीं है। बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने